Once again, very good morning, everyone. This is Vipin Kumar Gupta. I am the faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. My dear students, once again we are here to know about the revised syllabus of class 12th English. You know very well, CBSE has made a lot of changes in the syllabus. Many chapters and topics have been reduced. So let us come to know about whole syllabus of class 12th English. Your whole syllabus is of 100 marks, 80 marks theory based and 20 marks ASL, that is assessment in speaking and listening skills. So first of all, let us see about those 80 marks that is based on your theory. Your question paper contains two parts, part A and part B. Part A is of 40 marks and part B is of 40 marks. So let us see first of all part A. Part A, in part A, first section is reading comprehension. In reading comprehension, that is of 20 marks, in reading comprehension you will get two unseen passages. First unseen passage, that is based on your factual or descriptive or literary. Okay, first passage that will be of 10 marks. 11 questions you will get. Out of 11 you have to do 10 questions. Each question contain 1 marks. Okay, second passage, again it will be unseen, case based factual passage with verbal visual input like statistics data, charts, newspaper reports, etc. Again here also you will get 11 question and you have to do only 10. Each question contain 10 marks. It means in part first section, that is reading comprehension, that will be of 20 marks. Two long unseen passages you will get. One thing that is very remarkable and very important that you must know, one topic, that is note making and abstraction, which you have read in class 11th also, it has been removed, it has been reduced by CBSE. Note making and abstraction that you have read in class 11th, it was earlier in class 12th also, but this year CBSE has removed that topic, note making and abstraction. So this topic, note making and abstraction, you need not to read. Now part A, second comprehension, second thing that you see here, literature, that is of 20 marks. Literature, my dear student, you can see here, literature में आप यहाँ देख सकते हैं 20 marks. लिटरेचर में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम टू प्रोज एक्सट्रैक्ट, वन ईच फ्रॉम द फ्लेमिंगो एंड विस्टास. आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे. जो लिटरेचर सेक्शन का सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप जानते होंगे, जैसे किसी भी प्रोज से 4 लाइन 5 लाइन दे दिया और उससे बेस पे आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका प्रोज सेक्शन से, दोनों बुक से, 2 बुक आप जानते होंगे दोस्तों, फ्लेमिंगो एंड विस्टास. माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, 2 बुक्स आर प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, फ्लेमिंगो एंड विस्टास. फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों ही बुक से, प्रोज सेक्शन से 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और उन दोनों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होंगे. 3 दिए जाएंगे जिसमें 2 आपको करना होगा. वो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. मतलब एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, दूसरे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन, मीन टोटल 8 मार्क्स का आपका लिटरेचर सेक्शन का पहला क्वेश्चन आपका होगा. दैट विल बी बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट from Flamingo and Vistas both, 8 marks. Okay, second question from literature, that will be again extract based question from poetry section. Poetry section जो आपके टोटल 5 पोएम्स आपको पढ़ने हैं, फ्लेमिंगो बुक में 5 पोएम्स दिए हुए हैं, उन पोएट्री सेक्शन से भी एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा. मतलब आपको 4 लाइन्स पोएम से, किसी पोएम से दे दिया गया और उस बेस पे आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के होंगे. तो
पोइट्री से भी आपके एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और लिटरेचर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन आंसर होंगे जो बहुत ही इजी, और आपको एक एक लाइन के आंसर जो आपको लिखने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 10 एंड आउट ऑफ 10 यू हैव टू डू ओनली 8। 10 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे, 8 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो इन दिस वे वी कैन सी लिटरेचर पार्ट इट इज ऑफ 20 मार्क्स। सो in first part we have seen 20 marks it is for reading comprehension and 20 marks it is for literature part. So total it is of 40 marks. So in this way my dear students you have seen 40 marks it is first part reading comprehension and literature part that is based on extract. So total 40 marks. Now see the second part. Second part is again it is of 40 marks. सेकेंड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें पहला जो आपका सेक्शन होगा वो होगा राइटिंग सेक्शन। पार्ट बी में जो पहला सेक्शन होगा वो होगा राइटिंग सेक्शन, दैट विल बी ऑफ 16 मार्क्स। 16 मार्क्स जो राइटिंग सेक्शन होगा इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपका होगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो राइटिंग सेक्शन का होगा वो होगा नोटिस या एडवर्टीजमेंट। आई थिंक both these topics you have read in class 11th also. Notice or advertisement, word limit is 50 words and the question will be of 3 marks. 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, नोटिस से एक एडवर्टीजमेंट से, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा एंड द क्वेश्चन विल कंटेन 3 marks. Second question of writing section, again it is formal or informal invitation and reply. Invitation and reply, it's a new topic which you have not read in class 11th. It's a new topic in class 12th. So invitation or reply, word limit again it is 50 words only and it will be of 3 marks. 3 marks से यह क्वेश्चन होगा। ये फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई जो आपके सिलेबस में है 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से कोई एक आपको करना होगा। थर्ड क्वेश्चन जो होगा राइटिंग सेक्शन से दैट इज लेटर। लेटर इट मे बी वर्बल और विजुअल इनपुट। ओके, लेटर टाइप्स इफ यू आर टॉकिंग, लेटर आपका एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, लेटर टू द एडिटर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको लेटर से पूछे जा सकते हैं। टोटल मार्क्स फॉर लेटर इट विल बी 5 मार्क्स लेटर के लिए आपके होंगे और इसमें आपको अलग अलग तरह के लेटर पूछे जाएंगे। फोर्थ जो क्वेश्चन होगा आपका, फोर्थ जो क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन से होगा दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स, जो कि वर्ड लिमिट आपका 120 से 150 वर्ड्स होंगे। ओके, सो जो फोर्थ क्वेश्चन दैट विल बी 5 मार्क्स रिलेटिंग टू आर्टिकल और report writing and article, both these topics you have read in class 11th also. The same thing you have to read in class 12th also, article and report writing, descriptive writing. Okay, word limit is 120 to 150 words and marks that will contain 5 marks. Okay, so total writing section will be of 16 marks. So you can see my dear students, so many topics have been removed here like debate, speech, okay, and poster. So many topics have been deleted, have been removed by CBSE. Okay, part B का next section that is literature section. Again here literature section में अभी हम लोग पार्ट फर्स्ट में भी लिटरेचर सेक्शन को हम लोग देखे थे फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिटरेचर सेक्शन जो आपका क्वेश्चन अभी तक आपने पार्ट 1 में जो लिटरेचर सेक्शन देखा था दैट वाज यूजुअली बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, but here you have to see the question answer short and long both. तो literature section that is of 24 marks, literature section 24 marks का जो है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा 5 short answer type question out of 6 from prose and poetry from the book Flamingo। जो आपका फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो है जिसमें प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन दिया हुआ है, उन फ्लेमिंगो बुक से 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, जिसमें से केवल 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। वर्ड लिमिट इज 30 to 40 वर्ड्स लाइक वाइज क्लास 11th एंड इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, मीन्स 5
शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने होंगे प्रोज और पोएट्री दोनों से, फ्लेमिंगो बुक से, ओनली फ्रॉम फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो आपका फर्स्ट बुक है उससे आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से कोई 5 आपको करने होंगे, दैट विल कंटेन 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 3 फ्रॉम प्रोज विस्टास। विस्टास दैट इज योर सेकेंड बुक। फ्रॉम सेकेंड बुक विस्टास 3 questions will be asked. Out of those 3, only 2 questions you have to do. Again I am saying 2 short answer type question. 3 short answer type question मिलेंगे, उसमें से कोई 2 करने होंगे, 2 marks each. Word limit is again 30 to 40 words. Usually you know very well short answer type जो question होते हैं उसके word limit 30 to 40 words होते हैं, तो इसमें आपको 2 short question विस्टास से पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 long answer type question from Flamingo, either prose or from poetry. Word limit is 120 to 150 words. You know very well long answer का जो वर्ड लिमिट होता है दैट इज 120 to 150 वर्ड्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 2 में से कोई एक करना होगा। इट मीन यू विल गेट ऑप्शन हियर, एवरीवेयर यू आर गेटिंग ऑप्शन। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू दैट यू आर गेटिंग ऑप्शन एवरीवेयर। यू विल बी हैविंग सब्स्टिट्यूट, यू विल बी हैविंग ऑप्शन to choose any question. Like 2 questions you are getting, 2 long questions you are getting, out of 2 you have to do only 1. तो वो एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो फ्लेमिंगो से, प्रोज या पोएट्री सेक्शन से पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन होगा, उसमें से कोई एक आपको करना होगा, एंड वर्ड लिमिट इज 120 to 150 वर्ड्स। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। लास्ट जो क्वेश्चन होगा आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम विस्टास। एक क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा, एक क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन फ्लेमिंगो से पूछेगा, दूसरा जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपके सेकंड बुक विस्टास से पूछेगा, दैट इज वर्ड लिमिट इज 120 to 150 वर्ड अगेन, एंड 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे विस्टास से, 2 में से कोई एक करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सो इन दिस वे यू कैन सी हियर लिटरेचर सेक्शन 24 मार्क्स एंड 16 मार्क्स, इट इज राइटिंग सेक्शन मीन टोटल 40 मार्क्स। टोटल 40 मार्क्स पार्ट ए एंड 40 मार्क्स पार्ट बी, टोटल 80 मार्क्स। अब अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों कि क्या सिलेबस में चेंजेज हुए हैं, ये हम लोगों ने यहाँ देख लिया, पहले कैसे था और अब कैसे इसके पूरे सिलेबस को पूरी तरह से सीबीएसई ने इस बारी से चेंज कर दिया है। नाउ लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीटेड पार्ट, क्या क्या टॉपिक्स और चैप्टर डिलीट किए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिलीटेड टॉपिक्स, डिलीटेड टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीडिंग सेक्शन में क्या डिलीट किया गया, क्या रिड्यूस किया गया है। नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, note making and abstraction, my dear students, already I have told you in reading section earlier you are getting one question, note making and abstraction, note making and summarizing. This topic has been removed this time by CBSE. note making और summarizing को हटा दिया गया है, तो ये deleted topic में है, ये आपको note making और abstraction नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन लिटरेचर सेक्शन में देखते हैं क्या क्या डिलीट किया है सीबीएसई ने इस बार। लिटरेचर सेक्शन में अगर बात करें पहले हम फ्लेमिंगो, फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो, उसमें कौन कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया, रिमूव किया गया। फर्स्ट चैप्टर इज पोएट्स एंड पैनकेक्स, इट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो फ्लेमिंगो में आपको देखेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स, इट हैज़ बीन रिमूव्ड। सेकेंड चैप्टर द इंटरव्यू, द इंटरव्यू जो आपका फ्लेमिंगो में चैप्टर नंबर 7 है, द इंटरव्यू, इसको भी सीबीएसई के द्वारा रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 8 जो फ्लेमिंगो में आपको दिखेगा गोइंग प्लेसेज, गोइंग प्लेसेज जो चैप्टर नंबर 8 है फ्लेमिंगो में, इसको भी इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है। तो 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये 3 चैप्टर सीबीएसई के द्वारा फ्लेमिंगो बुक से हटा दिया गया। एंड वन मोर थिंग हैज़ बीन रिमूव्ड इन फ्लेमिंगो। इन फ्लेमिंगो यू कैन फाइंड 6 पोएम्स आर देयर। पोएम की बात करें 6 पोएम्स आपके सिलेबस में हैं, तो पोएम नंबर जो 6 है अ रोड साइड स्टैंड, पोएम नंबर 6 जो है अ रोड साइड स्टैंड जो है, इसको भी सीबीएसई के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। यू नीड नॉट टू रीड दिस चैप्टर, ओके। सो फ्लेमिंगो से 4 चैप्टर, 3 फ्रॉम प्रोज एंड 1 फ्रॉम पोएट्री हैव बीन रिमूव्ड। नाउ लेट अस सी अबाउट विस्टास। विस्टास में क्या डिलीट किया गया है सीबीएसई के द्वारा। विस्टास चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, इन विस्टास बुक चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, it has been removed. Chapter number 3 journey to the end of the earth, it also have been removed. And last chapter, chapter number 8 memories of childhood,
chapter number 8, memories of childhood, this chapter also has been removed. So you can see here from Vistas, where you will find only prose section in the book, 3 chapters, chapter number 2nd, chapter number 3rd and chapter number 8, 3 chapters have been removed. So these are the deleted part in literature section. Now reading section you have seen deleted part, literature section you have seen deleted part. Now let us see writing section. Writing section में क्या क्या डिलीट किया गया उसको देख लेते हैं एक बार। राइटिंग सेक्शन में जो सबसे पहले डिलीट किया गया है पोस्टर मेकिंग, पोस्टर मेकिंग विच यू हैव रेड इन क्लास 11th also, this part has been deleted, has been removed from your syllabus. नेक्स्ट इज बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके राइटिंग सेक्शन का, ये टॉपिक को भी इस बार डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। एंड नेक्स्ट इज स्पीच एंड डिबेट। ये दो बड़े टॉपिक थे जो आपको राइटिंग सेक्शन के 10 मार्क्स के पहले पूछे जाते थे। वर्ड लिमिट 150 to 200 वर्ड्स होते थे। इन दो टॉपिक को भी सीबीएसई के द्वारा हटा दिया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर सो मच topics and chapter have been removed. Now you have very good syllabus, very easy syllabus, very reduced syllabus you have, and you can see that from reading section one big part note making abstraction has been removed, literature part near about 7 chapters have been removed, and writing section also few topics have been removed. So these are the topics my dear students. Total 80 marks theory based questions and 20 marks up ASL assessment in speaking and listening. You can see here total syllabus also. Reading comprehension it is of 20 marks, writing skill it is 16 marks, literature it is 44 marks. So total it is of 80 marks. 80 marks syllabus total, and 20 marks that is assessment of listening and speaking skills which you have experienced in class 11th also. So these are the total syllabus of 100 marks my dear students. I hope you have got the whole chapter, whole syllabus clearly. Whatever I have told you about syllabus, according to these syllabus and schedule you have to prepare for your examination. Okay my dear student, then thank you. We will meet again in the next video. Thank you.